ہم نے کب اسلام آباد پہنچنا ہے، کب پنڈی پہنچنا ہے، آج تاریخ 11 ہے، ہو سکتا ہے بدل جائے، ہو سکتا ہے ہم جلدی پہنچ جائیں۔ سو پہلی بات یہ ہے کہ جو اس وقت انتخابات سے بھاگ رہے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں، اب میں راجہ پرویز اشرف کو کہتا ہوں، ذرا جرت کریں، باقی ساری نشستوں پہ بھی ہمارے استعفے قبول کریں اور الیکشن کروائیں۔ جس طرح پہلے آپ نے بیٹھ کے کہا کہ یہ 25 سیٹیں کمزور ہیں، ان پہ کرا لیتے ہیں، اب آپ باقیوں کو بھی ذرا کرا کے دیکھ لیں۔ اب آپ کے منہ کیوں بن گئے؟ 37 الیکشن ہوئے ہیں جب سے نو کانفیڈنس موو آئی، ان میں سے 29 پہ پی ٹی آئی نے لینڈ سلائیڈ وکٹری لی ہے۔ اس وقت 7 نشستوں کے اوپر عمران خان ایم این اے، جو ایک ورلڈ ریکارڈ ہے پارلیمنٹ کی ہسٹری کا، اور اس وقت 12 سیٹوں کے اوپر اوور آل عمران خان جو ہے وہ الیکشن لڑ چکے ہیں۔ اور اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگلا جو 120 سیٹیں ہوں گی ان پہ انشاءاللہ عمران خان ہی کینڈیڈیٹ ہوں گے، اور ایک پتہ بھی چل جائے گا۔ میں تو مریم نواز کو کہتا ہوں اب آپ پہ پابندی نہیں رہی ہے، آ جائیں ذرا الیکشن ہی لڑ لیں۔ نواز شریف تو لڑ نہیں سکتے، شہباز شریف یا مریم میں سے یا فضل الرحمان میں سے کسی کو شوق ہے تو آ جائیں الیکشن لڑ لیں گے، پتہ چل جائے گا پاپولیرٹی کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن سندھ میں نہیں کرائے جا رہے، بار بار الیکشنز کی تاریخ جو ہے وہ بدلی جا رہی ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی لوگ سندھ پولیس جو ہے وہ چونکہ اسلام آباد آئی ہوئی ہے تو ہم الیکشن نہیں کرا سکتے۔ ایسا نہیں ہے، سندھ کے عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے آپ وہاں پہ الیکشن نہیں کروا رہے۔ اور جہاں تک سندھ پولیس کا تعلق ہے، کل میں نے دیکھا کہ یہ بات میڈیا پہ آ رہی تھی کہ ان کو سہولیات نہیں دی گئیں، وہ جو پولیس ہے وہ در بدر ہو رہی ہے۔ میں اسلام آباد کی اپنی تنظیم سے درخواست کروں گا، اور میں نے اسد عمر صاحب سے بھی درخواست کی ہے کہ اپنی جو تنظیم ہے وہ سندھ پولیس جو آئی ہوئی ہے وہاں سے لانگ مارچ روکنے کے لیے انہیں تمام تر سہولیات دے، اور جو بھی چیز انہیں چاہیے، انہیں پانی چاہیے، رہنے کی جگہ چاہیے، وہ اسلام آباد کی ہماری تنظیم جو ہے وہ دے گی، کیونکہ انشاءاللہ یہ جو پولیس والے یہی ہمارا ہراول دستہ ہے حقیقی آزادی کا، اور انہوں نے الٹیمیٹلی آ کے حقیقی آزادی کے جو ہمارے پروٹیسٹرز ہیں ان کو تحفظ بھی دینا ہے، کیونکہ ہمارے پروٹیسٹرز جو ہیں، ہمارے جو احتجاج کرنے والے کارکنان ہیں، وہ تو سارے فیملیز ہیں، ان میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں۔ ہم لوگ لڑنے والے تو ہیں نہیں، ہم تو محبت والے لوگ ہیں، اور ہم تو اسی لیے میں رانا صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ تم اپنے عقیدوں کے نیزے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو، ہم لوگ محبت والے ہیں، تم خنجر کیوں لہراتے ہو؟ ہم تو ایک پاکستان میں انقلاب کے لیے بڑھ رہے ہیں، اور اس انقلاب کو لے کے ہم آگے چلیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ انقلاب پاکستان کی آزادی کے اوپر، حقیقی آزادی کے اوپر جو ہے وہ منترج ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ایک تعصب چل رہا ہے جس میں وہ لڑانا چاہتے ہیں اداروں کو عوام سے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ اس سے پہلے 1970 میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو پاکستان کے فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا کیا گیا، جو کل خان صاحب نے ذکر بھی کیا۔ کبھی بھی عوام اور اداروں کو ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ عوام اور اداروں کو ایک پیج کے اوپر رہنا ہوتا ہے اور رہنا چاہیے۔ اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو غلط فیصلہ ہوا، اب وقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس فیصلے کو اپنی تصحیح کرے اور عوام کے ساتھ آ کے کھڑی ہو۔ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ آج اگر سپریم کورٹ نے جو رولنگ سپیکر کی تھی اس میں ایک سیاسی فیصلہ نہ کیا ہوتا، آج اگر سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو کالعدم نہ قرار دیا ہوتا، پاکستان میں آج انتخابات ہو چکے ہوتے اور ہم ایک سیاسی طور کے اوپر مستحق استحکام کی طرف بڑھ رہے چکے ہوتے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کورٹس کو سیاسی مسائل میں نہیں آنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی وہ فیصلہ ہوا اور اس کی قیمت ہم آج تک ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اب بھی وقت ہے، اداروں کو اپنے فیصلوں میں تصحیح کرنی چاہیے اور عوام کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں تاکہ اداروں کی عزت جو ہے وہ بحال رہے۔
इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि अब जो नोटिस सुप्रीम कोर्ट को लेने चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट को फ़ौरन लेने चाहिए। आज़म सवाती साहब का मुकदमा हो, शहबाज गिल का केस हो, अरशद शरीफ का केस हो, ये वो मामलात हैं जिनके लिए अवाम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है, जिनके लिए अवाम समझती है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले करेगी, और ये वो फैसले हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स से मुतल्लिक। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करना, बुनियादी इंसानी हकूक़ को प्रोटेक्ट नहीं करना, तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान के आइन से जो बाब है हमारा इंसानी हकूक़ का, उसको निकाल दें। इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है। या मुल्क में आइन है या नहीं है, ये तो नहीं हो सकता कि आधा आइन आप मुअत्तल कर दें जो अवाम से मुतल्लिक है और दूसरा हिस्सा आप रख लें। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से तवक्को है कि वो इन मामलात का जायज़ा लेगी। इंशाअल्लाह आज हमारा जो लॉन्ग मार्च है, खान साहब अब से कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं, पिंडी बाईपास के ऊपर पहुंचेंगे और पिंडी बाईपास से ये शुरू होगा और गखड़ मंडी तक इंशाअल्लाह आज जाए। शुक्रिया। गिरफ्तारी का आपने मुतालबा किया, हालांकि पंजाब में आपकी दादी हुकूमत है और खान साहब जब लाहौर आते हैं तो वज़ीर आला साहब उसका इस्तेमाल करते हैं, अपनी कुर्सी पे बिठाते हैं। तो गिरफ्तारी में फिर क्या रुकावट है, क्या पंजाब हुकूमत ताबड़ नहीं कर रही? अच्छा, दूसरा ये है कि खुरम दस्तगीर साहब की इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन्होंने कहा है कि 2016 में आर्मी चीफ की तैनाती जब होनी थी तब भी इन्होंने इस्लामाबाद पर हमला किया था। उन्होंने वाज़ह किया है कि इलेक्शन अपनी मुकर्रर मुद्दत पर होंगे, अगर इन्हें ज़्यादा मसला है तो ये अपनी केपी और पंजाब के असम्बलियाँ क्यों नहीं तहरीर करी? पहली बात तो ये है कि मैं हुकूमत में नहीं हूँ। जो हुकूमत में है वो पंजाब की तहरीक इंसाफ है और काफ लीग है, तो मैं तो उनसे मुतालबा करूँगा ना पार्टी। दूसरी बात यह है कि खुरम दस्तगीर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके सारे शौक़ पूरे होंगे इंशाअल्लाह, इलेक्शन भी होंगे और पंजाब और केपी की असम्बलियाँ भी तहलील होंगी। ये एक फ्रेमवर्क के तहत तहलील होंगी और इसीलिए हम चाहते हैं कि ये मामला बातचीत से हो। अच्छा फवाद भाई ये बताइएगा कि इस वक्त जो पोजीशन अच्छा फवाद साहब, आज ने जो पोजीशन है वो होल्ड कर ली है और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर बात है, वो इलेक्शन करवाना नहीं चाहते और आप जो है इससे पीछे अपने मुतालबे से हटना नहीं चाहते। अगर थर्ड फोर्स इंटरवीन नहीं करती, उसकी इंटरवेंशन के बगैर जो है मामलात को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं कि उसके बगैर किसी सालसी के मामलात हल हो जाएंगे या तसादम के साथ ही मामले को हल किया? नहीं, हम तो कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करे। हम तो बात ही नहीं मान रहे कि एस्टैब्लिशमेंट जो है उसका कोई रोल नहीं है। हम तो कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा अहम रोल है और वो अपना रोल अदा करे। हम तो कह रहे हैं इलेक्शन। अच्छा फवाद साहब, पंजाब में गवर्नमेंट भी आपकी है, पुलिस भी आपकी है, लेकिन इसके बावजूद लांगबा जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, बैनर भी इमरान खान के खिलाफ लगते जा रहे हैं, आज राह वाले और गखर में भी लगे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इस सूरत हाल में कोई कशीदगी का खतरा है? देखिए, अगर यही तो मैं पंजाब हुकूमत से कह रहा हूँ, मसरत भी बैठी हैं, ये अभी मैसेज भी पहुँचाएंगी। अगर इस तरह के बैनर लगेंगे और लोगों ने जाके खुरम दस्तगीर साहब को घर में जाके पिटाई कर दी, तो फिर हमारा जिले में तो नहीं होगा। जिस तरह से लाखों लोग कल निकले और वो कह रहे हैं कि मैं बैनर लगवा रहा हूँ, तो बड़ी बुरी बात है। खुरम दस्तगीर के वालिद साहब ने भी यही हरकतें की थी, ये खुद भी यही हरकतें कर रहे हैं। सही बात, सही, ये बात आपकी सही है कि एस्टैब्लिशमेंट का मुझसे कहना कि ये किरदार अदा करे ये आइन से बाहर है, लेकिन यही तो मसला है पाकिस्तान में। एस्टैब्लिशमेंट ने किस आइन के तहत MQM और BAP को कहा कि ये आप अलाइज इधर से उधर हो जाए? ये जो आज शहबाज शरीफ की हुकूमत खड़ी है, ये क्या सियासी तौर के ऊपर वोटें लेके खड़ी हुई है? किसने किया ये? तो जिन्होंने किया उन्हीं कह रहे हैं ना कि आपने फैसला गलत किया। साहब, आप अगर मुज़ाकरात नहीं करते हुकूमत के साथ और हुकूमत आपके साथ नहीं करी, दोनों अतराफ से बयान आते कि हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, तो इसका वजह सीधा साथों में जिसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं। देखिए, बात यह है कि अभी तो कई मरहले आएंगे। तसादुम तो ज़ाहिर है हमारा तो नहीं है तसादुम, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारा उम्मीद यही है कि मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे और ये जो कुछ हॉक्स दरमियान में लगे हुए हैं इनका मसला है, अदरवाइज हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। साहब ये बताइए कि जो वफाकी काबीना है इसराइल ये बताते हैं कि वो कानून में तरमीम कर रही है
FIA के हवाले से कि जो भी सोशल मीडिया पर कंपेन चलती है अदारों के खिलाफ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके। और इमरान खान को भी बुलाया है लाहौर FIA में, क्या उनकी गिरफ्तारी के इम्कान हैं? पहली बात तो यह है कि FIA का नोटिस जो इमरान खान को है वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसकी वजह यह है कि वज़ीर आज़म को और वज़रा को किसी ऐसे मामले के ऊपर नहीं बुलाया जा सकता जिसका ताल्लुक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से हो, और यह साइफर का मामला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है, लिहाजा FIA उनको नहीं बुला सकती, ये इलीगल है। दूसरा यहाँ तक दूसरा क्या था आपका? हाँ, दूसरा ये जो कवानीन है इनके बगैर भी एंटी टेररिज्म एक्ट में लोगों को बुला रहे थे। तो अब ये कानून से जो हमारे सोशल मीडिया के या सहाफ़ी हैं उनके खिलाफ ज़्यादा कार्रवाइयाँ होंगी। तो लेट्स सी, हम तो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में जो मीडिया की तंजीमें हैं वो चंद मालकान चला रहे हैं, तो लिहाजा मीडिया की तंजीमों की तरफ से रिएक्शन नहीं आया। सबसे ज़्यादा जबर भी मीडिया पे है, सबसे ज़्यादा जुल्म भी मीडिया के ऊपर हो रहा है, सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियाँ भी उनकी हुई हैं, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के लोगों को उठाया गया है। और वो सोशल मीडिया के लोग भी असल में सहाफ़ी थे, लेकिन मालकान के 2-3 मालकान की वजह से मीडिया की तंजीमें जो हैं उन्होंने एहतजाज नहीं किया। खान साहब पहुँच गए। ये फरमाइएगा, कोई बात नहीं, अब बैनर कल भी लगे, बैनर आज भी लगे, ये मुसर्रफ जवाब है। पंजाब हुकूमत क्यों इतना सुस्त रवैया मुसर्रफ इख्तियार होता है। है? और आपका जो वज़ीर आला पंजाब है, जो आपके इत्तेहादी हैं चौधरी परवेज लाई, वो हमें कहीं नजर नहीं आ रहे। इतनी देर में तो वो सोच चुके होने चाहिए थे जो लोगों ने ये जज्बा मौजूद है। क्या वजह है कि परवेज लाई साहब इतने सुस्त क्यों है? अच्छा, सबसे पहले तो जो इन्होंने कल इंतशार फैलाने की कोशिश की, ये पार्टी है इंतशार पार्टी, और इनसे आप मनफी प्रोपेगंडा, इंतशार, इश्ताल अंगेज़ी के अलावा कुछ तवक्को भी ना करें। अगर मरियम का कोई दूसरा नाम हो तो आप खुद अपने अपने ज़हनों में ज़्यूम कर लें कि क्या होगा कि जब आती है लड़ाई झगड़ा फसाद, ऐसे ऐसे लगता है जैसे हिटलर की रूह इसमें आ गई हुई और तबाह बर्बाद करना चाहती है जिधर भी जाती है। पहले तबाही फेरी इसने अपनी जमात के अंदर, फिर उसके बाद ख़ानदान के अंदर, और अब मुल्क के अंदर चाहती है। इनफैक्ट ये जो सारे डर्टी आइडियाज़ होते हैं, इनकी मुजद ले दे के खुरा इसी की तरफ जाता है। जो भी प्रो मरियम होगा वो गंदगी फैलाएगा। तो मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि जिस दिन मरियम तुम्हारे ख़ानदान के बारे में बैनर्स लग गए ना, तो तुम, मेरा ख्याल है, लेकिन ढीठ और बेशरम तुम काफ़ी हो, तो फिर आपको समझ नहीं आएगी कि आप करें क्या। जहाँ तक रह गई कानूनी चाराजोई, कानूनी कार्रवाई, तो बिल्कुल मैं अभी उमर चीमा साहब से रब्ता करूँगी कि इसके खिलाफ हम लीगल एक्शन भी लेंगे ताकि दोबारा इस तरह से, अदरवाइज़ तो फिर कोई मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। मरियम के भी सबको कच्चे चट्टे पता है। और जहाँ तक रहेगी परवेज़ इलाही साहब की बात, तो वो गुजरात में हमारा वेलकम कर रहे हैं, हम उनके मेहमान हैं वहाँ पे। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।